Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 13th November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that Russia Belarus hold drills near Poland. So, it is basically talking about one of the exercise that is held near the place of Poland. Belarus and Russian paratroops staged joint drills on Friday near the Polish and Lithuanian borders during the standoff between Belarus, from one side Belarus, and EU over the migrant camped in freezing forest at the frontier. This actually it is basically because of the tension between Minsk and EU that Poland's arrival. Basically, if you will see the map of Poland, near the Poland's border, there were some of the migrants who migrated in that particular area, and related to that this drill exercise happened. So this exercise at the Gorskaya training ground involved airborne unit landing and carrying out combat training, including capturing the bridgehead, searching and destroying of enemy target. Belarus Defense Ministry said. So its activities or the under the exercise they practice different activities such as holding the bridgehead, then destroying the target of enemy, how to destroy the target of enemy. This all things were reported by the Belarus troops, yeah, spokesperson. Okay, so the EU has accused Belarus of mounting a hybrid attack on the bloc by flying 1,000 of migrants, mainly from West Asia, and pushing them to try to cross the illegally into the Poland. So it was an allegation made by this EU has EU has allegated that, yeah, put an allegation that बेलारस ने जानबूझकर पोलैंड के बॉर्डर्स के पास माइग्रेंट्स को पुश ऑफ करवाया है. So the neighbor of Belarus have expressed a concern over the crisis, and this will actually increase the military confrontation between both the countries. ठीक है. President Alexander said this week that he could cut off Russia gas supply to Europe through pipelines over Belarus, but the Kremlin appeared to distance him itself from the threats. So the US is very concerned over this following situation that is happening between Poland and Belarus. Okay, and basically during the report, during the statement, it showed that it is becoming a concern for US. And because, and second thing that they have stated here is that Turkey banned Syrians, Yemeni and Iraqi citizens from the flights to Minsk on Friday. So the EU countries, the European countries are actually showing its dissatisfaction by different of the activities. So article was important for you to know the recent clash that is happening between Belarus and Poland, the role of European Union under this battle or under this Cold War like situation, and the main people or the main group which is actually suffering because of this is the citizens who have been migrated from that place to the borders of Poland. Okay, so now we'll move to the next article. The next article is a data as a report that states study remote education was inaccessible to most of the children. सो ये नोटिस किया गया था कि पैंडमिक के सिचुएशन में या कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे बच्चों का ड्रॉप आउट हुआ है, एंड समहाउ द रीज़न एस्टिमेटेड रीज़न वाज बिकॉज ऑफ द कोविड. ठीक है, तो ये रिपोर्ट हमें बताता है कि कोविड सिचुएशन वाज वन ऑफ द रीज़न कि बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ डिजिटलाइजेशन. एक कंसर्न, एक हिंडर बन चुका है लोगों के लिए. बिकॉज अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओगे, बहुत रिमोट एरियाज़ में जाओगे, वहाँ पर इसका यूज़ होना या स्टूडेंट्स या वहाँ के लोगों को टेक सेवी बनाना स्टिल अ बिग difficulty. ठीक है, and therefore it has become a reason for the dropout of the students.
As high as 36% of the households with enrolled school age children do not have internet connectivity during the pandemic. Approximately remote areas के 36% बच्चों के पास अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और इन 92% ऑफ द हाउस होल्ड चिल्ड्रंस डू नॉट रिसीव रिमोट एजुकेशन। ठीक है, उसमें भी कुछ जो बच्चे नहीं ले रहे हैं उसमें 92% ऑफ बच्चे ऐसे भी हैं जो एजुकेशन ये ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इफ़ यू विल एक्चुअली सी दिस चार्ट विल लेट यू नो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर हम देखेंगे रूरल एरिया की तो 64% इंटरनेट कनेक्टिविटी है, 36% इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, उसमें से भी जो 64% जिनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसका भी 31% बच्चे नहीं कर पाते बिकॉज उनको रिमोट एजुकेशन नहीं मिल पाता। 31% ऑफ स्टूडेंट्स अटेन रिमोट एजुकेशन। 64 में से 69% स्टूडेंट्स नहीं अटेंड करते रिमोट एजुकेशन इंटरनेट फैसिलिटी होने के बावजूद। और यहाँ पर जो 36% ऑफ बच्चे जो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उस 36 में से जो है 8% ऑफ बच्चे रिमोट एजुकेशन ले पाते हैं, और इस 36 में से 92% बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रिमोट एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं। सो इंटरनेट होकर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है, और इंटरनेट नहीं होकर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है इसका। Only 20% of the school-age children in India had access to the remote education during the pandemic, of whom on half participated in online lessons, according to the it is a report that is made by them, according to ICRIER। ठीक है, उनके हिसाब से ये है कि थिंक टैंक को फ़िलहाल के लिए जो है ना डिजिटल पॉलिसीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप डिजिटल पॉलिसीज़ को कैसे एक्सेसिबल बनाओ सभी रिमोट एरियाज़ के लोगों के लिए भी। ठीक है, हमारा थिंक टैंक कौन है अभी? नीति आयोग, राइट। सो नीति आयोग, उनका ये बोलना है कि नीति आयोग को फ़िलहाल थोड़ा सा डिजिटल पॉलिसीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट ये नोटिस किया गया था रिपोर्ट से कि 38% ऑफ जो बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने ड्रॉप आउट लिया था या वो ड्रॉप आउट हुए थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19। ठीक है, सो एक तो हम नोटिस करते हैं हर साल बच्चों के ड्रॉप आउट्स बहुत होता है, ये साल नोटिस किया था कि ड्रॉप आउट में और एक रीज़न जुड़ गया था, दैट वाज कोविड। The survey released on Friday found that although digital connectivity shot up 40% during pandemic, the low access of device, poor signal, high cost prevented most of the children for having the benefits. Because अगर remote area की अगर हम बात करें तो education उस हिसाब से मिलना is not possible, internet connection मिलना normal, वहाँ पे towers नहीं रहते, normal call नहीं लग पाते, normal connectivity नहीं रह पाती, तो internet connectivity लाना भी एक hurdle है ऐसे सच रिमोट एरियाज़ के लिए। 70,000 हाउस होल्ड कवर्ड। अभी किस चीज़ कवरेंस की बात कर रहे हैं? तो फेस टू फेस सर्वे करने के बाद ये नोटिस किया था कि सैम्पल्स में से 7,000 या 7,000 हाउस होल्ड ऐसे थे, ठीक है, जिन मतलब मार्च से अगस्त के बीच में ओनली केरला वॉज एक्सक्लूडेड ड्यू टू हाई कोविड केसेस। क्या है ये 7,000 हाउस होल्ड का जो जिनका सर्वे किया था उसमें नोटिस किया था 5 से लेके 18 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उसमें से 80% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रायर टू पैंडमिक जो है एजुकेशन पहले से कभी नहीं लिया, तो पैंडमिक के रहते हुए बाद भी वो लोग एजुकेशन नहीं ले पाए। अमॉन्ग 20% who received education, only 55% has access to online classes, while उसमें से 68% जो है वो रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियोस जो यूट्यूब से होता है या ऐसे सब चीज़ों से वो लोग अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुनते हैं। तो ये डेटा हमें बेसिकली यही बता रहा है पैंडमिक सिचुएशन होने की वजह से या ना होने की वजह से भी रिमोट एरियाज़ पे अब तक एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच चुका है, और थिंक टैंक को कहीं ना कहीं कोई नई इनिशिएटिव लाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को, बच्चों को एजुकेशन मिल सके, बच्चे अपना इंटरेस्ट दिखा सके एजुकेशन के तरफ। So that was about this article.
that remote education was inaccessible to both the most of the children. क्यों हमने यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि 64% रहकर भी 64% कनेक्टिविटी रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं था, और वही ये 36% नहीं रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 64 में से जो है ओनली 31% बच्चे ऐसे थे जो रिमोट एजुकेशन ले पा रहे थे इंटरनेट की वजह से, और बाकी 69 नहीं ले रहे थे इंटरनेट होने के बावजूद। वेरएस 36 में सिर्फ 8% बच्चे ऐसे थे कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं होकर भी सिर्फ 8% एजुकेशन ले पा रहे थे। वही बाकी के 92% स्टूडेंट नहीं रह के भी कोई फ़ायदा नहीं था, उनका एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे वो। सो दैट वाज द डेटा दैट वाज रिसेंटली released in the newspaper. Now we'll move to the next article. Emergency measures under GRAP likely. हमने कुछ दिन पहले से देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिल्ली और द नेबरिंग स्टेट बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग कैन बी अ रीज़न ऑफ इट। स्टबल बर्निंग के साथ क्रैकर्स कैन बी अ रीज़न ऑफ इट, ठीक है। पॉल्यूशन कैन बी अ रीज़न ऑफ इट। CH ग्रीन हाउस गैस कैन बी अ रीज़न ऑफ इट। सो ये सब रीजंस मिलाकर कहीं ना कहीं पोल्यूशन बहुत हो रहा है, और नेबरिंग स्टेट्स ने ये बोला कि हमें कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो दिल्ली चोक्स एज द AQI remains severe, neighboring states told to be action ready. You have to take an action immediately. The city's air quality deteriorated to the higher end and severely level on Friday, and is likely to continue same on Saturday as well. States in the national capital regions were on Friday directed to be ready to implement actions under GRAF. Now, GRAF is basically Graded Response Action Plan. Because Graded Response Action Plan simply means because of the sudden situation, you have to implement a certain action so that you can at least solve it or decrease the situation. So states ने ये बोला है कि आपको ग्रेप के अंडर कोई ना कोई एक्शन लेना भी ज़रूरी हो चुका है ऑफिशियल्स की ऑर्डर्स के हिसाब से। ग्रेप इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, and subcommittee under the this CAQM is Commission of Air Quality Management in NCR and adjoining areas gave an direction to GRAP, and also advised the government and private hospitals to establish the reduce of, because कहीं ना कहीं हमें पता है कि आज के टाइम का दिल्ली का पोल्यूशन के रीज़न, वन ऑफ द रीज़न इज़ व्हीकल ऑल्सो, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, उसको कम करने के लिए बीच में हमने ऑड एंड इवन देखा था। ऑड एंड इवन की वजह से पोल्यूशन बहुत कम हो भी चुका था। सो ये ऑर्डर्स भी दिया है गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट ऑफिसर्स एज वेल एज गवर्नमेंट्स को जो है व्हीकल पोल्यूशन कम करने को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ सच व्हीकल्स। सो ग्रैप इज़ अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, ठीक है। ग्रैप के बारे में इसमें बताया है प्रॉपर्ली ग्रैप है क्या, तो इट इज़ अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन कम करने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस निकलता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पोल्यूशन। ग्रैप वाज नोटिफाइड बाय यूनियन गवर्नमेंट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर सबसे पहले बार जो है ये 2017 में लाया गया था, या इंडिकेट किया गया था एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर 2017 में एयर पोल्यूशन कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक सीवियर रहा, ठीक है। तो उस एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, उस ऐसे एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के लिए ग्रैप को फर्स्ट टाइम 2017 में लाया गया था। जिसी टाइम पे हमने देखा था कि ऑड एंड इवन जो चालू हुआ था वो भी 2017 में हुआ था टू सॉल्व द इशू, ठीक है। तो वो ग्रैप के अंडर ही लाया गया था। उसके साथ ही साथ रैशनिंग द स्कीम्स बेस्ड ऑन नंबर प्लेट्स, जो इवन नंबर्स वाले हैं वो इवन डे पे निकलेंगे, जो ऑड नंबर्स वाले नंबर प्लेट है वो ऑड डे पे निकलेंगे। एंड इट वाज एक्चुअली अ बेनिफिशियल, या इट प्रूव्ड सक्सेसफुल, बिकॉज बहुत लेवल तक का पोल्यूशन कम हुआ था बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव दैट वाज टेकन अंडर ग्रैप इन 2017। तो सेम ऐसा कुछ तरीका निकालने की बात कर रहे हैं रिसेंट नेबरिंग स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर क्वालिटी ऑफ द नेशनल कैपिटल हैज़ सीवियरली बीन डिटोरेटिंग for 6 out of 8 days of Deepavali.
ठीक है, क्योंकि जो 8 दिन के डेटाज में देखा था तो 6 दिन सीवियर दिखा था और 2 दिन जो है वो 2 दिन जो है वेरी पुअर दिखा था, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस दिखाया नहीं गया था. द एयर पोल्यूशन या द एयर क्वालिटी वर्सन ऑन फ्राइडे ड्यू टू द स्टबल बर्निंग इन दी नियर स्टेट्स. सफ़र के हिसाब से, सफ़र क्या है, सफ़र के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है जब हम स्टेबल बर्निंग के बारे में पहले देख रहे थे. सफ़र इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. सो सफ़र का भी ये मानना है कि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है एंड डेटा ये बताता है कि एयर क्वालिटी जो अभी है उसमें 35% ऑफ द रीज़न जो है दैट इज़ स्टबल बर्निंग. इट इज़ बिकॉज ऑफ दी स्टबल बर्निंग जो इंक्रीज़ हुआ है, जिसके वजह से PM2.5 बहुत इंक्रीज़ दिख रहा है इंडिया में. ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू प्रायर एक्टिविटीज़ 35% ऑफ स्टबल बर्निंग हैज़ बिकम अ रीज़न टू दी डिटोरेटिंग एयर. ठीक है, एयर क्वालिटी वॉज 471 ऑन फ्राइडे. ठीक है, फ्राइडे को एयर क्वालिटी 471 दिख रहा था और थर्सडे को 411 दिख रहा था. नॉट अ मेजर चेंज, 400 में ही साथ, दैट मीन्स इट वॉज सीवियरली अफेक्टेड. मीन वाइल द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे लॉन्च्ड एन एंटी डस्ट कैंपेन 2.0. अगेन अब नाम याद रखना है, एंटी डस्ट कैंपेन 2.4. किसने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने एंटी डस्ट कैंपेन 2.4 लॉन्च किया था टू कंट्रोल द डस्ट पॉल्यूशन. ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने ये चेंज लाने के लिए साइट्स पे, ये मतलब जो वर्किंग साइट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले साइट्स होते हैं, वहाँ पर ये चेंजेस लाने के लिए 2.0 का प्लान लाया था. जिस कैंपेन के अगर किसी ने अगर इतने अमाउंट से ज़्यादा धूल मिट्टी की तो उनको फ़ाइन भरना पड़ेगा ऑफ 1.3 करोड़. ठीक है, एंड मिस्टर राय इंस्पेक्टेड अ कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ NBCC इन ककरडुमा एंड इम्पोज देम अ 5 लाख ऑफ वायलेशन. तो उसका वो भी इनिशिएशन उसका हो चुका है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क पे धूल मिट्टी ज़्यादा दिख रही है एक लेवल से ज़्यादा तो उनको फ़ाइन देनी पड़ेगी. और उसका सर्वेलेंस जो है हमारे खुद के एनवायरनमेंट मिनिस्टर वहाँ के पर्सनली चेक कर रहे हैं सारे ही साइट्स पे. अब तक एक दो साइट्स पे वो फ़ाइन लगा भी चुके हैं. सो इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन थोड़ा कम हो सकेगा, थोड़ी एयर क्वालिटी सुधर सकेगी अगर हम ऐसे छोटे छोटे लेवल पे काम करना स्टार्ट करें. सो उसके रिलेटेड ही आर्टिकल आया था अबाउट द इमरजेंसी ऑफ ग्रैप. ग्रैप के बारे में मैंने आपको बता दिया ग्रैप है क्या. राइट, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हमारा बताता है साइबर क्राइम वेंट 500% ड्यूरिंग दी पैंडमिक. पैंडमिक के सिचुएशन में डेटा के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो साइबर क्राइम इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. डिफेंस चीफ जो है हमारे जनरल बिपिन रावत सर, उन्होंने बोला कि नेशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हम देखेंगे हमारा ऑनलाइन अटैक बहुत ज़्यादा हुआ है पैंडमिक सिचुएशन में. ऑनलाइन अटैक की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2020 मुंबई के पावर सप्लाई ऑल ऑफ सडन कट होने की वजह से हमारे TY के एग्ज़ाम्स कट हो गए थे. शॉर्ट ये उनको दिक्कत आई थी. उसी के साथ हमने नोटिस किया था कि मुंबई का जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे उनके डेटा ये हुए थे. फिर पेगासस का सिचुएशन अभी आप ले लो. तो कहने का ये बात सच है कि पैंडमिक सिचुएशन में इंडिया का जो साइबर अटैक है इंडिया पर बहुत ज़्यादा हुआ है. अप्रॉक्सीमेटली वो बोलते हैं 500% ज़्यादा हुआ है पैंडमिक के सिचुएशन में. सो द चीफ of the defense staff Mr. General Bipin Rawat has stressed the need for the national framework. नेशनल फ्रेमवर्क इज़ नेशनल लेवल पे हमें ऐसे कुछ इनिशिएशन लेने चाहिए सो दैट जो कंट्री में साइबर क्राइम बढ़ रहा है कंटिन्यूसली उसको हम कम कर सकें. So while the nation's cyber security strategy is offering, the country is also in a dire need to data protection law. While क्योंकि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने की बात की तो बोला गया कि हम लोग का डेटा प्राइवेसी चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा. डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि उसको लाने की बात की जा रही है. So while the national cybersecurity strategy is in offing, the country is also in the dire need to protect the data law, with the cyber criminals increasing the weaponing data as well as a tool against the national security.
रिलाइंग ऑन दी टेक्नोलॉजी, रिलाइंग ऑन दी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बन गया जिसकी वजह से साइबर क्राइम इतना ज़्यादा लेवल पे है कि हम इतना टेक सेवी बनने की कोशिश करते हैं कि हम फुल्ली डेटा पे रिलाई करते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी हमें मदद करेगा या हमारे इंटरनेट हमें मदद करेंगे, एंड दैट इज़ अ रीज़न कहीं ना कहीं साइबर अटैक हैज़ गॉन टू 500%. So, cyber crimes have gone up to almost 500% in India during the global pandemic. We need to consider the emerging threats from the new technology, सच एज जो ransomware है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऐसे कुछ डिवाइस हैं, ये सब डिवाइसों की वजह से कहीं ना कहीं ये साइबर अटैक ज़्यादा हो चुका है. जनरल बिपिन रावत सेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द IT एक्ट जिसके अगेंस्ट इतना बवाल हुआ था, IT एक्ट 2000 that dealt with the cyber security and cyber crime is not equipped to consider the new age changes. CDS also lamented the delay in passing the personal data protection bill. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पढ़ा था हमने कि उसमें क्या बता रहा है, उसको भी पास आउट नहीं किया. एंड somehow this is increasing the cyber crime in India if we don't take a current or the decision as soon as possible. Kerala Police Chief Mr. Anil Kant, Additional Director General of Police Mr. Manoj Abraham, Information Security Research Association President Mr. Manu Charchala, एंड सोसाइटी फॉर पॉलिसिंग दी साइबर स्पेस एग्जीक्यूटिव. तो ये चीज़ बोला है कि पैंडमिक, ये एक कंसर्न उठाया है इंडिया के नेशनल फ्रेमवर्क को लेके मिस्टर बिपिन रावत ने कि हमें कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो सिचुएशंस और ख़राब हो सकते हैं इंडिया के साइबर सिक्योरिटी को लेकर. उसी पर इन्होंने क्वेश्चन बताया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं एंड इट इज़ राइजिंग टू 500%. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.